Welcome back students. In this tutorial I am going to teach you very important topic, else if statement. If else if statement. So see here, so it is used to check for more than one condition using this else if or if else if. Using this we can give more than one condition. For example, in if else we are giving only two condition, one condition in if block and second condition in if else block. So using if you can give more than one condition. So how to give? See, for example, you can give one condition inside the if block, then you can write down if and then again you can write down one more condition inside the else block. See here, if the condition for if evaluate to false, it will check the condition under the next if else. Means if the condition of if block is false, then cursor will go inside the else if statement. Then if the condition for the first else if block evaluates to false, it will check the condition of the next else if block and so on. Means if you return more than one else if, so it will check the condition more than one time. If both condition are false, then cursor will go inside the else block and this body will be executed. सिंपली यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे यूजिंग इफ एल इफ हम क्या कर सकते हैं, मोर देन वन इफ कंडीशन दे सकते हैं यहाँ पे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस साइड का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो देन सेकेंड कंडीशन चेक हो जाएंगी एल्स इफ, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है देन एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये है जानकारी अबाउट एल्स इफ एल्स के बारे में। सो इफ ऑल कंडीशन evaluate to false, the statement under the else print are executed. See the flow chart. यहाँ पे एक कंडीशन है टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इट, मीन्स यहाँ पे अगर इफ ब्लॉक होता है इफ, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये नीचे का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एल्स इफ है, मीन्स यहाँ पे और एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कर्सर जाएगा यहाँ पे, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो सी हियर फॉर एग्जाम्पल, so see this is the example we have taken input from the user. If the number user enter number is greater than 0, अगर 0 से एंटर है नंबर, फॉर एग्जांपल यूजर ने 10 नंबर इनपुट किया है, कंडीशन चेक होगी, नंबर इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन ये फॉल्स है, फॉर एग्जांपल यूजर ने 0 प्रिंट किया है, 0 एंटर किया है, तो ये ब्लॉक, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, कर्सर आ जाएगा नीचे और ये यहाँ पे ये चेक होगा कि एल्स इफ नंबर इक्वल्स टू 0, हाँ कंडीशन ट्रू है, देन मैसेज प्रिंट होगा 0, ये एल्स ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मैच हो गई है। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये भी कंडीशन निगेटिव होती है, फॉर एग्जांपल यूजर ने -10 एंटर कर दिया, तो कंडीशन क्या हो गई, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 फॉल्स, क्योंकि निगेटिव नंबर है तो कंडीशन फिर से चेक होगी, इफ नंबर इक्वल्स टू 0, 0 है या नहीं है, देन this message will display negative number. So this is about the if else if condition. So inside this simply logic ये है कि यहाँ पे आप more than one condition दे सकते हो और आपका logic यहाँ पे उस तरह से execute होगा। Then second task है हमारा the nested if statement. So using one if statement inside another if statement is called nesting. So what is meant by nesting? So if you give one condition like if और उसके अंदर और एक कंडीशन देते हो आप, तो देन ये हो गया nesting of if statement. While nesting proper
indentation should be provided, otherwise it may give unexpected output. You can have multiple level of nesting, however it can get confused and therefore it must be avoided. देखो नेस्टिंग आप कर रहे हो मीन्स मोर देन वन कंडीशन दे रहे हो तो प्रॉपरली आपको उसको फॉलो करना होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस प्रोग्राम में यहाँ पे देखते हैं हम हाउ द नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड, और वी कैन गिव more than one condition. For example, so let me remove this one. So number, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ मैं फ्लोट टाइप का, सो फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ और इनपुट। सो इनपुट क्या है यहाँ पे, इनपुट इज द कीवर्ड विच इज यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। देन यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ, इंटर अ नंबर। ओके, यहाँ पे इस तरह से मैं डिस्प्ले करता हूँ। उसके बाद एक कंडीशन देता हूँ यहाँ पे, इफ number greater than equals to 0, then again एक कंडीशन देता हूँ इसके अंदर, if number equals to 0, then print the message. What message? Number is 0. Okay. Then इसके अंदर और एक कंडीशन देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन रहेगी else सी इनसाइड दिस, और एक कंडीशन देता हूं मैं, यहां पे देता हूं पॉजिटिव नंबर, और इसके अंदर और एक कंडीशन देता हूं मैं, एल्स की प्रिंट नेगेटिव number. See the logic. See here, so num is the variable, so inside this user can input the value as a floating or integer. So input is the data type which is used to take the input from the user. So enter a number, so this message will display on your screen. Then user will enter the number. For example, user enter the 10. Okay, first condition block will be executed. Check if number greater than 0, condition is true because user entered 10 number. If number equals to 0, यहाँ पे चेक होगा कि नंबर क्या है, 0 है क्या, नहीं है, तो ये ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा। ओके, देन एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे मैसेज होगा पॉजिटिव नंबर। अगर यूजर -10 नंबर एंटर करता है तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, हाँ कंडीशन ट्रू है। इफ नंबर इक्वल्स टू 0 नहीं है, देन एल्स पॉजिटिव नंबर है क्या, नहीं है, देन एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे देखो, यूजिंग इफ एल्स इफ वी कैन गिव मोर देन वन कंडीशन। इतना ही लॉजिक है इसमें कि यूजिंग दिस इफ एल्स इफ यूजर कैन गिव मोर देन वन कंडीशन। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि इफ में क्या होता है, एक ही लॉजिकल स्टेटमेंट होता है, एक ही कंडीशन होती है।
इफ एल्स में कितनी कंडीशन होती है, मोर देन वन कंडीशन होती है, मीन्स दो कंडीशन होती है। और एल्स, इफ एल्स में कितने कंडीशन होते हैं, मोर देन वन, मीन्स इसमें हम अनलिमिटेड कंडीशन ले सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दी नेस्टेड इफ एल्स। तो देखो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, देखो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होते हैं, इसमें मोर देन वन इफ स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक इफ कंडीशन यूज हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसमें आता है, तो यहाँ पे चेक होता है कि हाँ इफ नंबर इक्वल्स टू 0 देन print the number is 0 message, else we can print positive number। तो nested if else में क्या होता है, देखो more than one if condition we can give inside the if block। so this is about the what nested if statement। So see here, while nesting proper indentation should be provided, otherwise it may give unexpected output। So you can have multiple level of nesting, however it can get confused and therefore it must be avoided। Then logical operator, see this is also one of the important topic, logical operator we will discuss in next session।